from JMP English Medium Saraswati Group of Education. Today I am conducting this session for grade 4. Subject is SS. We are discussing chapter number 6, our natural resources, forest and wildlife. And this is my session number 4 for this chapter. So kids, what have we already learnt in this chapter? Let us recap once. एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी क्या पढ़ा था. Firstly, introduction, in which I told you what is meant by natural resources. Natural resources are the things which are found in nature. जो नेचर में अवेलेबल है उन थिंग्स को नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे कि ट्रीज जिसमें फॉरेस्ट आ जाता है, वाइल्ड लाइफ जिसमें कि वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, ये सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. सनलाइट, एयर, वाटर, ये सारे के सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं. These are not made by man. These are not made by man. Then I told you the types of natural resources, in which I discussed two things: exhaustible, which are called non-renewable. Another one is inexhaustible, which are called renewable. Exhaustible means which get over, which cannot be renewed, so non-renewable. And inexhaustible means which will not get over, and so they are called renewable. Examples of these two: exhaustible, you can take coal, petroleum, etc. Inexhaustible, sunlight, water, all these are inexhaustible. Next we discuss the benefits of forest. There were several benefits. Let us take only 5 of them. First thing, forest gives us oxygen to breathe. It gives timber. Second point, it gives us timber. Timber is used for making furniture, buildings, etc. Paper. Then plants are also used as medicines. ये एक और पॉइंट है. एक और पॉइंट ले लेते हैं. फॉरेस्ट, the trees hold the roots of the trees hold the soil firmly, so the soil will not get washed away in winds or flood. During the flood in water, it will not get washed away. Then it is a shelter. Forest also provides shelter for birds and animals. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं. मैंने सिर्फ 5 पॉइंट यहाँ डिस्कस किए हैं क्योंकि ये हम सिर्फ एक बार रिकैप कर रहे हैं. जब मैंने इसका सेशन लिया था तब सारे पॉइंट्स डिटेल में आपको समझा दिए. एग्जाम में अगर मैं आपको पूछूं कि राइट ओनली 5 पॉइंट्स, तो कोई भी रैंडमली कोई भी 5 पॉइंट्स आप ले सकते हो. क्लियर? देन वी डिस्कस द टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट के बेनिफिट्स क्या है ये तो सीख लिए. फिर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में कितने टाइप के फॉरेस्ट सीखे थे हमने? वी डिस्कस 5 टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट. वन इज evergreen forest, deciduous forest, thorny and scrub, mountain and coniferous, and tidal or mangroves. एग्जाम में मैं ये पूछ सकती हूँ, give the other name of deciduous forest. So you will write deciduous forest, other name is monsoon forest. Give the other name of coniferous forest. So you will write coniferous forest are also called mountain forest. Other name of tidal forest, you will write tidal forest are also called mangroves. Correct? Evergreen forest की speciality, all the trees do not shed their leaves at once, so it looks green throughout the year. So ये evergreen forest के बारे में था. Deciduous forest, deciduous को monsoon forest भी कहा जाता है. So deciduous forest में क्या है कि ये मॉनसून के टाइम, बारिश के टाइम एकदम ज्यादा थिक ग्रो होता है. लग्जरियंट वेराइटी ऑफ ट्रीज ग्रो होते हैं. स्पेशल ट्री कौन सा है deciduous forest का? सैंडलवुड, एंड इट इज ग्रोन इन कर्नाटका. करेक्ट? देन वी लर्न अबाउट थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट. ये ड्राई डेजर्ट एरियाज में थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट होते हैं, तो थॉर्न ज्यादा होते हैं इनके प्लांट्स में, इसीलिए थॉर्नी एंड स्क्रब फॉरेस्ट कहा जाता है. देन वी लर्न अबाउट माउंटेन फॉरेस्ट. दीज आर फाउंड इन द हिमालयन रीजन एंड द पार्ट्स ऑफ नीलगिरीज. तो ये माउंटेन फॉरेस्ट की स्पेशलिटी क्या है? वी डिस्कस, राइट? तो क्या स्पेशलिटी है माउंटेन फॉरेस्ट की?
इसे कोनिफरस फॉरेस्ट क्यों कहा जाता है? व्हाई डू वी कॉल देम कोनिफरस फॉरेस्ट? बिकॉज द ट्रीज आर कोन शेप। ट्रीज जो है वो कोन शेप के हैं, करेक्ट? सो दैट द स्नो विल नॉट सेटल डाउन, इट विल स्लिप ऑफ इन द स्लैंट ऑफ द ट्री एंड फॉल ऑन द ग्राउंड। एंड इसके नीडल्स के लीव्स कैसे होते हैं? नीडल शेप होते हैं, करेक्ट? माउंटेन फॉरेस्ट, कोनिफरस फॉरेस्ट के ट्रीज जो है उसके लीव्स नीडल शेप के होते हैं। नीडल मीन्स सुई, करेक्ट? सो दिस वाज द स्पेशलिटी ऑफ दैट फॉरेस्ट। देन टाइडल फॉरेस्ट, टाइडल फॉरेस्ट को मैंग्रोव फॉरेस्ट भी कहा जाता है। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है वो डेल्टा रीजन में पाया जाता है। मेजर रिवर्स जो है उसके जो डेल्टास बनते हैं, स्पेशली इन वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश का जो एरिया है, यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं या टाइडल फॉरेस्ट, करेक्ट? दे आर वेरी डेंस। एंड सुंदरबंस जो है वो एक एरिया है, फॉरेस्ट एरिया सुंदरबंस। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट ट्री है सुंदरी ट्री। तो ये मैंग्रोव फॉरेस्ट या टाइडल फॉरेस्ट में पाया जाता है ये, करेक्ट? इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। मैंने फोटोज भी शेयर की थी और एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शेयर की थी कि मैंग्रोव फॉरेस्ट के ट्री की स्पेशलिटी क्या है? द रूट्स समटाइम ग्रो अबाउट द ग्राउंड इन सर्च ऑफ एयर, इन सर्च ऑफ एयर। Then we discussed in our previous session conservation of forest. फॉरेस्ट को क्यों कंजर्व करना है? डिफॉरेस्टेशन का मतलब क्या है? कटिंग डाउन ऑफ ट्री इन लार्ज नंबर इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन। व्हाई डू वी कट डाउन ट्री? ट्री को क्यों कट करते हैं? टिम्बर के लिए, लैंड को क्लियर करते हैं हाउस बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए। तो ये सारे के सारे चीजें करने के लिए हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं। डिफॉरेस्टेशन से क्या प्रॉब्लम आएगी? लैंडस्लाइड्स होंगी, फ्लड के टाइम सॉइल जो है वो फ्लो होकर चली जाएगी वाटर के साथ, विंड के साथ ब्लो होकर चली जाएगी, सो सॉइल इरोजन भी ज्यादा होगा। देन द वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स विल लूज देयर होम। वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स का घर बचेगा? नहीं बचेगा, क्योंकि आपने फॉरेस्ट को क्लियर कर दिए। एंड सबसे इम्पोर्टेंट, ऑक्सीजन लेवल जो है वो कम हो जाएगी, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगी, जिससे ब्रीदिंग प्रॉब्लम होगी। ओके, सो ये सारे। देन आई ऑल्सो डिस्कस कि गवर्नमेंट ने 2 प्रोजेक्ट्स के नाम मैंने यहाँ कहे थे, जिससे फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए उन्होंने स्टार्ट किए हैं गवर्नमेंट ने। कौन कौन से थे वो प्रोजेक्ट? एक है सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम और एक है वन महोत्सव। सोशल फॉरेस्ट्री प्रोग्राम और वन महोत्सव, ये 2 प्रोग्राम इंडियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया है टू प्रोटेक्ट दीज फॉरेस्ट रिसोर्सेस। फॉरेस्ट रिसोर्सेस को प्रोटेक्ट करने के लिए ये स्टार्ट किया है। ये सारे के सारे पॉइंट्स हमने प्रीवियस सेशंस में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज के सेशन में आई हैव टोल्ड यू, इन्फॉर्म्ड यू इन माय प्रीवियस सेशन कि आज के सेशन में हम इस चैप्टर का लास्ट पार्ट जो है दैट इज वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ये आज का टॉपिक है हमारा, तो इसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे इस सेशन में। वाइल्ड लाइफ, वाइल्ड मतलब जंगली, लाइफ मतलब जंगल में रहने वाले के बारे में। तो ये भी एक नेचुरल रिसोर्स है। क्यों? क्योंकि जंगल में जो भी लिविंग थिंग्स है वो हमने नहीं बनाई है, इट इज नेचुरली मेड बाय गॉड, भगवान ने बनाई है। तो वाइल्ड लाइफ भी एक नेचुरल रिसोर्सेस ही हुआ ना, करेक्ट? तो जंगल में कौन रहता है किड्स? यस, लायन, टाइगर, ये सारे वाइल्ड एनिमल्स जो है वो ही रहते हैं फॉरेस्ट में। तो वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में हम इन्हीं एनिमल्स के बारे में सीखेंगे। ये कहाँ पर है, क्योंकि ये हम इंडिया के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो इंडिया के वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्लियर? सो लेट अस स्टार्ट। इंडिया हैज अ लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ।
इंडिया में बहुत सारे लार्ज वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, मतलब कि वाइल्ड एनिमल्स बहुत वैरायटी के आपको मिलेंगे। However, animals are being hunted and killed in large number by human beings for their skin, fur, horn and tusk. But in animals को इंडिया में हंट भी बहुत किया जाता है, शिकार। हंट मीन्स शिकार करना, इनका शिकार भी बहुत किया जाता है। क्यों शिकार करते हैं? Sometimes we hunt animals just for entertainment, सिर्फ अपनी खुशी को। कुछ लोग जो है वो अपनी बहादुरी को प्रूव करने के लिए हंटिंग करते हैं। बट ये क्या अच्छी बात है? अपनी बहादुरी प्रूव करने के लिए किसी और लिविंग थिंग को आप मार डालते हो तो ये अच्छी बात है? ये आप अच्छे इंसान हो ऐसा कह सकते हैं? नहीं कह सकते। इट इज नॉट गुड टू प्रूव योर ब्रेवरी। इफ यू आर किलिंग समबडी एल्स देन यू आर नॉट ब्रेव। उसे हम ब्रेव नहीं मानेंगे। यस, इफ दैट लिविंग थिंग इज डेंजरस फॉर यू देन यू हैव टू किल इट। अगर वो आपके ऊपर अटैक करता है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए आप अगर कुछ करते हो तो अलग बात है। मगर जस्ट फॉर फन, जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर प्रूविंग दैट यू आर ब्रेव, हंटिंग इज नॉट गुड। तो उसके लिए हंट नहीं करते। ये सिर्फ एक रीजन नहीं है, खुद को प्रूव करने के लिए हंट करना ये एक ही रीजन नहीं है। हंट और भी बहुत सारी वजहों से करते हैं। क्या क्या रीजंस है हंटिंग के? फर्स्ट थिंग, एनिमल की स्किन के लिए। उस एनिमल स्किन से हम क्या करते हैं? वी मेक लेदर बैग्स, लेदर बेड, लेदर वॉलेट्स, लेदर शूज। ये सारी की सारी लेदर की चीजें बनाते हैं। ये लेदर की चीजें बहुत एक्सपेंसिव भी होती है। एक्सपेंसिव मीन्स बहुत प्राइस देना पड़ता है उन्हें खरीदने के लिए, बहुत पैसे देने पड़ते हैं। मगर क्या उसे लेना अच्छी बात है? क्योंकि आप अगर उसे खरीदते हो तो इसका मतलब क्या है? जो उसे बेचता है ना वो ज्यादा से ज्यादा माल बनाना, प्रोडक्शन बनाना स्टार्ट करेगा। ज्यादा प्रोडक्शन करना है तो वो क्या करेगा? ज्यादा से ज्यादा एनिमल्स को हंट करेगा जस्ट फॉर देयर स्किन, सिर्फ उसकी स्किन के लिए। तो ये एनिमल्स के लिए अच्छी बात होगी? नहीं होगी। तो वी मस्ट नॉट यूज ऑल दीज लेदर आइटम्स। क्यों? क्योंकि उस लेदर आइटम में जो एनिमल की स्किन यूज होती है वो स्किन हंटिंग करके उन एनिमल्स में से निकाली जाती है। नेचुरली कोई एनिमल अगर मर गया है तो उसकी स्किन निकालना अलग बात है। मगर सिर्फ स्किन के लिए किसी एक हेल्दी एनिमल को हमने हंट करके मार डाला और उसकी स्किन निकाली तो वो इट इज नॉट गुड। सो एनिमल स्किन के लिए यूज करते हैं। फर, आपने देखा होगा जैकेट्स, ये वो फर के जैकेट मिलते हैं, फैशन में यूज किए जाते हैं। मगर ये फर जो है वो एनिमल में से हम निकालते हैं तो उस बेचारा एनिमल की क्या मिस्टेक है? क्यों उसके बॉडी में से फर निकालते हैं? आपकी बॉडी में से अगर कोई कुछ निकाले तो आपको अच्छा लगेगा? तो हम लोग क्यों एनिमल की बॉडी में से फर निकालते हैं? विच इज गिफ्टेड टू दैट एनिमल फ्रॉम गॉड। उसे वो गॉड गिफ्टेड है फर, तो उसकी बॉडी में से निकाल के वो हमारे यूज के लिए फर ले लेते हैं तो इट इज नॉट गुड। तो एनिमल स्किन के लिए, फर के लिए हंटिंग होता है। देन हॉर्न्स, एनिमल के जो सींग होते हैं, आपने देखा होगा हॉर्न्स, उस सींग के लिए भी हंटिंग होती है। एंड टस्क, टस्क का मतलब क्या है? आपने एलिफेंट को ऑब्जर्व किया है? एलिफेंट के आगे दो बड़े बड़े दांत होते हैं तो उसे हम टस्क कहेंगे। क्या कहेंगे? टस्क। सो इन टस्क का बहुत ज्यादा रेट होता है तो इसको बेचने के लिए, बेच के पैसे कमाने के लिए ये लोग जो है एनिमल्स का हंटिंग करते हैं, विच इज नॉट गुड। सो वी use all these things and hence people hunt them. Why they hunt? For their skin, fur, horn and tusk. In order to protect wildlife, certain forests are protected by the government.
अब इन वाइल्ड लाइफ मतलब वाइल्ड एनिमल्स, वाइल्ड बर्ड्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, दे हैव प्रोटेक्टेड सम फॉरेस्ट एरियाज। कुछ फॉरेस्ट एरियाज को गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और उन एरियाज में जो है हंटिंग प्रोहिबिटेड है। प्रोहिबिटेड मतलब शिकार करना मना है। उन एरियाज में आप शिकार के लिए नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि वो एरियाज गवर्नमेंट कंट्रोल में है, गवर्नमेंट उन्हें प्रोटेक्ट करती है उन फॉरेस्ट एरियाज को। फॉरेस्ट एरियाज को क्यों प्रोटेक्ट करती है? क्योंकि उन फॉरेस्ट एरियाज में वाइल्ड एनिमल्स या वाइल्ड बर्ड्स रहते हैं जिनको शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए इन फॉरेस्ट को बचाना जरूरी है। These are known as forest reserves और wildlife sanctuaries। अब जिन एरियाज को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, जिन फॉरेस्ट एरियाज को गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है, उन एरियाज को या तो फिर फॉरेस्ट रिजर्व कहा जाता है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फॉरेस्ट रिजर्व्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। किसे कहा जाता है? The areas or the forest which are protected by the government are called wildlife sanctuaries or forest reserves. At present, there are 514 wildlife sanctuaries. आज के टाइम में इंडिया में 514 wildlife sanctuaries है, 39 टाइगर रिजर्व्स है जो टाइगर्स के लिए स्पेशली उन एरियाज को रिजर्व रखा गया है, उन फॉरेस्ट को टाइगर्स के लिए ही रखा गया है प्रोटेक्टेड। 100 नेशनल पार्क्स है एंड 21 बर्ड सेंचुरीज इन इंडिया। और बर्ड सेंचुरीज मतलब बर्ड्स के लिए रिजर्व एरिया जो है उसे बर्ड सेंचुरी कहते हैं। तो वो कितने हैं? 21। सो 514 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 39 टाइगर रिजर्व, 100 नेशनल पार्क, 21 बर्ड सेंचुरीज। ये हम इंडिया के बारे में पढ़ रहे हैं। सम ऑफ द फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर, फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नाम यहाँ पर दिए गए हैं। सम ऑफ देम, सारे के सारे नहीं है, इंडिया में बहुत सारे, बट जो फेमस है उनमें से कुछ नाम आपको दिए गए हैं। दे आर सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल। सुंदरबंस मैंने बोला था ये फॉरेस्ट एरिया है जहां सुंदरी ट्री ग्रो होता है। आई टोल्ड यू राइट। सो ये सुंदरबंस जहां पर टाइडल फॉरेस्ट है, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। सुंदरबंस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इट इज देयर इन वेस्ट बंगाल। देन कॉर्बेट इन उत्तराखंड, जिम कॉर्बेट भी बोलते हैं, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या जिम कॉर्बेट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहां पर है? ये उत्तराखंड में है। देन काजीरंगा एंड मानस इन असम, असम में काजीरंगा और मानस नाम की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। बंडीपुर इन कर्नाटका, कर्नाटक में बंडीपुर का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। देन कान्हा इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश जो स्टेट है, ये अलग अलग स्टेट्स के नाम है, तो मध्य प्रदेश में कान्हा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। पेरियार इन केरला, केरला में कौन सा है? पेरियार। गिर इन गुजरात, हमारे गुजरात में गिर, सासन गिर जो कहते हैं गिर, ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात का। एंड सरिस्का, रणथंबोर एंड केओलाडियो, सरिस्का, रणथंबोर एंड केओलाडियो, ये तीन जो है, केओलाडियो घाना, ये भरतपुर इन राजस्थान में है। कहां पर है? भरतपुर राजस्थान में। कौन कौन से हैं? राजस्थान में 3 है। दे आर सरिस्का, देन रणथंबोर एंड केओलाडियो घाना। ओके, तो ये सारे के सारे हमने डिस्कस किए। वो क्या है? वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, कौन कौन से हैं? प्रोनाउंसिएशन सुनिएगा, ट्राई कीजिएगा कि आप खुद इसे प्रोनाउंस करो और करेक्ट प्रोनाउंस करना। क्लियर?
सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, कॉर्बेट इन उत्तराखंड, काजीरंगा एंड मानस इन असम, बंडीपुर इन कर्नाटका, कान्हा इन मध्य प्रदेश, पेरियार इन केरला, गिर इन गुजरात एंड सरिस्का, रणथंबोर एंड केवलाडियो घाना, भरतपुर इन राजस्थान। Many animals such as, मैं यहाँ बहुत सारे एनिमल्स के नाम बोल रही हूँ, लायन, टाइगर, लेपर्ड्स, राइनोसॉर्स, एलिफेंट्स, नीलगाइस, चिंकारा एंड मंकी आर फाउंड इन दीज सेंचुरीज। ये सारे के सारे एनिमल्स इन सेंचुरीज में पाए जाते हैं। नाउ वंस अगेन मैं इन सारे एनिमल्स के नाम रिपीट करूंगी और जैसे जैसे रिपीट करूंगी आपको इन एनिमल्स के पिक्चर भी दिखाऊंगी, आप देखते जाओ, क्योंकि सम एनिमल्स यू हैव सीन, सम ऑफ देम यू माइट हैव सीन बट यू माइट नॉट बी नोइंग द नेम। आपने शायद देखे होंगे मगर उनके नाम नहीं पता होंगे, तो इसलिए मैं इन सारे एनिमल्स के नाम रिपीट कर रही हूँ, साथ ही साथ पिक्चर्स भी दिखा रही हूँ, देखना केयरफुली। लायंस, लायंस तो आपने देखे ही होंगे, राइट? तो ये है लायन। नेक्स्ट टाइगर्स, टाइगर्स भी बहुत देखे होंगे। When you were kids, you might have learned T for tiger, L for lion, T for tiger. तो ये है टाइगर, देखा? नेक्स्ट लेपर्ड्स, उसके बॉडी पर भी देखो स्पॉट्स हैं, ये लेपर्ड। तो ये भी इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में पाए जाते हैं इंडिया में। देन राइनोसॉर्स, राइनोसॉर्स को देखा, उसके नाक के ऊपर एक हॉर्न है, देखा? यस, सो इट इज राइनोसॉर्स। देन एलिफेंट्स, ये तो बच्चों का फेवरेट एनिमल है, फॉर एलिफेंट। Right from your childhood you might have seen this, right? Yes, it is elephant. Then नीलगाय, नीलगाय देखी, ये जंगल में होती है, नॉर्मली आपको कहीं और नहीं दिखती है। ये नीलगाय इन एरियाज में बहुत सारी होती है। They are sometimes very dangerous, कभी कभी बहुत डेंजरस हो जाती है ये नीलगाय। नेक्स्ट चिंकारा, देखा? चिंकारा, यस। एंड मंकीज, सो ये सारे एनिमल्स जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में पाए जाते हैं। क्लियर? ओके, आई होप यू एंजॉयड। करेक्ट? मजा आया ना इन सारे के सारे एनिमल्स के पिक्चर्स को देखकर? Yes, I know you enjoyed it a lot. अब इनके नाम याद रखना, पिक्चर को देखकर आइडेंटिफाई करना है आपको कि ये कौन सा एनिमल है, ये कौन सा एनिमल है। कर पाओगे? ओके। Here means वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट। नेचुरल हैबिटेट मीन्स वो नेचुरली जिस जगह पर रहने के लिए योग्य भगवान ने उन्हें बनाया है उस जगह पर वो रह सकते हैं। अगर आप उनको जू में या ऐसे पिंजरे के अंदर कैद करके रखो, इफ यू पुट देम इन द केज, whatever you do, you give them everything the best you could. You grow trees inside the cage or you give them good food, but still they won't become happy. अगर आपको किसी केज में पिंजरे में डाल दे तो आप हैप्पी होगे? उस पिंजरे में आपको सब चीजें मैं प्रोवाइड करूंगी, फिर भी आप हैप्पी होगे? नहीं। तो उसी तरह इन एनिमल्स को उनके नेचुरल हैबिटेट, जहां भगवान ने उन्हें रहने के काबिल बनाया है, वहां पर अगर खुले में ओपनली फ्रीली अगर उन्हें रहने दो तो दीज एनिमल्स विल बिकम मोर हैप्पी एंड देयर नंबर ऑफ एनिमल्स विल ऑल्सो बिकम मोर। इनके नंबर्स भी ज्यादा होते जाएंगे।
अगर उनको हंट करते रहोगे तो ये एक दिन क्या होगा, धीरे धीरे ये एनिमल्स मर जाएंगे सारे के सारे। उनके बच्चों को भी आपने हंट कर दिया तो वो भी मर जाएंगे, तो बाद में ये एनिमल दुनिया में रहेंगे नहीं रहेंगे। तो अगर आपको इन्हें प्रोटेक्टेड रखना है तो हंटिंग नहीं करनी है। सो हियर दीज एनिमल्स लिव इन देयर नेचुरल हैबिटेट एंड नो वन इज अलाउड टू डिस्टर्ब, हंट और किल देम। और किसी को भी, क्योंकि ये गवर्नमेंट के रिजर्व एरियाज होते हैं, गवर्नमेंट इन्हें प्रोटेक्ट करती है, तो इन एरियाज में हंटिंग, किलिंग या एनिमल्स को डिस्टर्ब करना कुछ भी अलाउड नहीं होता है। ये एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, नेशनल पार्क्स, बर्ड सेंचुरीज, टाइगर रिजर्व्स, ये सारे के सारे इसी वजह से गवर्नमेंट करती है। क्यों? क्योंकि इन्हें प्रोटेक्टेड रखना है। ओके, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर मैं इस चैप्टर को खत्म कर रही हूँ। आई होप कि इस चैप्टर में हमने जितने भी पॉइंट्स सीखे हैं फॉरेस्ट के बारे में, वाइल्ड लाइफ के बारे में, वो सारे के सारे पॉइंट्स आपको आ गए होंगे। करेक्ट? आई होप यू आर हैविंग नो डाउट्स। So please, before I start the exercise from the textbook, which I will solve in the next session, I want all of you to read the chapter with the correct pronunciation. If you are having any problem in pronouncing, please go through the video once again, listen to what I am pronouncing and try to pronunciate these words by yourself. Okay? So do this thing, and in next session we will discuss the exercise of this chapter which is given at the end of this chapter in your textbook. Along with this video I am sending a worksheet which is PDF and fill in the blanks based. In this worksheet you have to find the answers from the textbook and write them. Okay? Discuss the answers with your friends if you are having any difficulty, or you can take the help from your parents also. Go through the video if you are having any doubts, if you want to clear anything. So I am ending this session here. Bye.